So very good evening all the participants. So let us try some of the case studies on professional ethics. I have already shared this material in the group. So case studies on business and professional ethics. So what they are asking recently, they are asking questions on say first schedule. Because if we go to first schedule of insolvency professionals, so it says that okay, there are certain qualities which are expected from you. And what are those qualities? First schedule talks of code of conduct for insolvency professionals. So let me first discuss some of the important provisions of this first schedule. So let me share another this. Okay. So insolvency professionals first schedule. अंडर IPF. रेगुलेशन 72H। हाँ राइट। तो ये आ गया आपका फर्स्ट शेड्यूल। सो फर्स्ट शेड्यूल इज टॉकिंग ऑफ फर्स्ट integrity and objectivity. So first of all, we have to be, our integrity should be intact and we should be objective in our dealings. So it says you be honest, straightforward and forthright in all professional relationships. So let us briefly cover this code of conduct first and then we'll go on to the case studies. So first thing is expected from us is honesty, straightforward approach and forthright in all professional relationships. You should not try to deceive. You should not try to take something which is not due to you. है ना? Hmm. Like in a recent case study, they asked the question that okay, uh, there was a proposal by CD to withdraw the application which was filed against it, and but one of the financial creditors was objecting. The wife of the insolvency professional was a legal professional, and he obtained the legal opinion from her wife in her professional capacity that okay, whether this person is financial creditor or operational creditor. And then that person was termed as operational creditor, so he was taken out from the COC so that the objective could be met. So what they did, they passed a resolution withdrawing the CIRP and increase in fees of the RP. But this was something which was not done in good faith. So he was not honest, he was not straightforward and forthright in all professional relationships, which is expected of a person who is an insolvency professional. ठीक है, अच्छा। सेकंड क्या कहता है? An insolvency professional must not misrepresent any facts or situations and should refrain from being involved in any action that would bring disrepute to the profession. So he should not misrepresent any facts or situations. Like in this case, he tried to distort the facts. So if you try to distort the facts, if you try to misrepresent, because there are certain actions, there are certain decisions which can be taken by you, which COC also will not challenge normally. Powers of COC are different, powers of RP are different. Normally, RP has powers. The only question is of ratification of the cost, which is done by the COC. But there are certain major decisions which can be taken only by the COC, which are given in section 28. But whenever you are taking any decision as an RP, you should not misrepresent any facts or situations and you should refrain from being involved in any action that would bring disrepute to the profession. ठीक है? An insolvency you cannot take bribe, etc. An insolvency professional must act with objectivity in its professional dealings by ensuring that his decisions are made without the presence of any bias. Now, let me put before you a situation. You are an insolvency professional. You are handling CIRP matters. A claimant comes to you and he says, "You please fill up my form," and you charge the fees. So, what should be your reaction? You are an RP. A creditor, a claimant has approached you that okay, I'm not very conversant with this procedure,
So you help me in filling up this form and you can charge fees from me. So what should be your view on this? Whether you whether you can help him by charging fees or you can deny what you can do. We can directly straight way we are not binding with this legal formalities here, not help you. And yes sir, मतलब हम हमको मतलब दूसरी जगह पे करवा देंगे, हाँ, प्रोफेसर कलीग। we can say that okay, but this form is very easy. You can fill it up yourself or you can take help assistance. If you want any legal assistance, so I can refer it to some of my friends who can do it for fees. है ना? But I will not be able to directly handle this because it यस, will be a conflict of interest. या है ना? हम्म An insolvency professional must act with objectivity in its, क्योंकि वो उसको आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया है हम्म in professional dealings by ensuring that his decisions are made without the presence of any bias, conflict of interest, coercion, or undue influence of any party, whether directly connected to the insolvency proceedings or not. Suppose you have been appointed as a liquidator, right? हम्म You are dealing with a real estate project. Now, there is a flat in which your brother is interested, and your brother says to him that, okay, you are the liquidator, you please show me the papers, I know, of that flat. I want to buy that flat. Can you help me with that? So, what will be your reaction? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यू कांट 29 ए सर, 29 इनएलिजिबल। की बात ही नहीं है। 29 वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थोड़ी बन रहा है वो। नहीं सॉरी सॉरी भाई मतलब सपोज फ्लैट्स आर पुट अप फॉर सेल इन लिक्विडेशन, ओके, लिक्विडेशन में तो सेल होती है ना। हाँ हाँ तो हाँ योर हाँ, ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग वन फ्लैट, ठीक है। तो वो हम्म बोलता है भाई मेरे को पेपर दिखा दो, आप तो लिक्विडेटर हो, आपके पास तो सारे पेपर हो गए, हम्म और मुझे बताओ कैसे हेल्प कर सकते हो। तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसमें? क्यों रूप नहीं किरण जी? तो नहीं सर, हमें कोई दिखाना नहीं चाहिए सर, कोई बोलेगा वैल्यू कैसे वगैरह कुछ भाई भी हो नहीं बोल। हमारा, तुम हमें पेपर ही नहीं दिखाते। नहीं, उनको बोला है आप ओपन एक्शन में अप्लाई करो बोल के बोल रहे हैं। Right, very correct. Right, right. So, if somebody is opening for is appearing in open auction, then it's okay, है ना? Because then the things are transparent. But we cannot divulge any information to which we are privy, है ना? We may be privy to certain information of the CD. ऐसा नहीं लिखे हम अपने हमें कुछ बताना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनर हो कॉलेज में, है ना, और आपके हम्म किसी रिश्तेदार का पेपर आ जाए, रिश्तेदार के बच्चे का पेपर आ जाए, तो आप उसको बताते थोड़ी हो, नहीं बताते ना आप, हम्म है ना? ऐसा ही हम्म है। तो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो बायस, कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेदर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स और नॉट। ये सब सवाल पूछ लेता है क्या फिर एग्जाम में इस तरह से? हम्म An insolvency professional must disclose the details of any conflict of interest to the stakeholders whenever he comes across such conflict of interest during an assignment. अच्छा, ऐसे बात ये है, ये कंपनी है एक्स वाई जेड, ऐसा डिस्कशन करेंगे जनरल, ठीक है ना। हम्म अब एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। यू हैव हम्म बीन अपॉइंटेड एज एन आरपी। आपके ब्रदर का उस कंपनी में शेयर्स है, ही इज हैविंग 1000 शेयर्स इन दैट कंपनी। तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कि ही इज हैविंग 1000 शेयर्स, ये किसी को बतानी है या नहीं बतानी है, क्या करना है? डिस्क्लोज करना सर। डिस्क्लोज करना, वेरी करेक्ट। कहां पर डिस्क्लोज करना है? आपको पता चला आज कि भाई उसके पास 1000 शेयर्स है। बोर्ड को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, नहीं सीओसी वो को, सब ठीक है। सीओसी। आप ये देखिए, पहले तो ये देखिए कि रिलेशनशिप, यहां पर रिलेशनशिप डिस्क्लोजर है ना। हाँ, ये हम्म क्या कहता है? ये रिलेशनशिप डिस्क्लोजर की बात करता है और कहता है कि रिलेशनशिप हैज टू बी डिस्क्लोज विद इन 3 days, 3 days, यस। ठीक है। अब ये देखिए, रिलेशनशिप किसके साथ होनी चाहिए? ये पहले तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स देख लेते हैं हम, है ना। काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स देखकर फिर देखेंगे कि क्या है। पहला कहता है कि वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और अदर प्रोफेशनल एज द केस में बी हैज डिराइव्ड 5% और मोर ऑफ हिज और इट्स ग्रॉस रेवेन्यू इन ईयर फ्रॉम द प्रोफेशनल सर्विसेज टू द रिलेटेड पार्टी, ठीक है। 8B और 8C,
रिलेशनशिप, ये इन टाइप्स की रिलेशनशिप होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग द 3 years प्रिसीडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर प्रोफेशनल्स। ठीक है। Where the insolvency professional or the other professional as the case may be has derived 5% or more of his or its gross revenue in a year from professional services to the related party। मतलब ये कि आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, ठीक है, एक पार्टी है जिससे आपको 5% मिल रहा है ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। योर टोटल रेवेन्यू इज से 10 crores एंड यू आर गेटिंग 50 lakhs फ्रॉम दैट पार्टी। ठीक है। हम्म तो उस केस में आपको ये डिस्क्लोज करना है नहीं करना, किस कहां पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? पहला, अब आप ये देखिए, ये रिलेशनशिप को शुरू से पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये एन इंसॉल्वेंसी इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी में आएगा। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शेल डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पेक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप with any of the stakeholders entitled to distribution under section 53 और 178। ठीक है। रिलेशनशिप किसके साथ होनी चाहिए? जो कि हमारा स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर 53 में या 178 में? 53 या 178 में कौन कौन आते हैं? क्रेडिटर्स आएंगे और शेयर होल्डर्स आएंगे, यही आते हैं बेसिकली, है ना? हम्म भाई 53 में किसको मिलता है? या तो क्रेडिटर को मिलेगा या शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ऐसा ही 178 में भी है ना? हम्म और बताना किसको है ये देखिए, बाय मेकिंग ए डिक्लेरेशन ऑफ द सेम टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को बताना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बताना है, एंड द पर्सन प्रपोजिंग अपॉइंटमेंट एज एप्लीकेबल। ठीक है। ये एप्लीकेंट कौन है यहां पर? जो सीआरपी को इनिशिएट करता है, अप्लाई हम्म फाइलिंग करता है वो, हम्म। एमडी और केएमपी हाँ। और An मैनेजर। insolvency professional shall disclose as to whether he was an employee of or has been in the panel of any financial creditor of the corporate debtor। एक तो बात हमें ये समझनी है कि देखिए, देर आर टू थिंग्स। वन, बार, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो सकते हो या नहीं हो सकते, दिस इज वन थिंग। और सेकंड है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर थोड़ा सा अलग लेवल पे है। मतलब ये कि आपका ब्रदर एक किसी कंपनी में शेयर होल्डर है, तो आपके अपॉइंटमेंट पर बार नहीं है। यू कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सपोज अब आपका ब्रदर के पास एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उस कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो सकते, आप अपॉइंट हो सकते हो, लेकिन आपको ये रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। An insolvency professional shall disclose as to whether he was an employee of or has been in the panel of any financial creditor of the corporate debtor। ठीक है। अगर वो सीडी का एम्प्लॉय है तो भी बताना है। आप सीडी के एम्प्लॉय थे मान लो, ठीक है, टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ विच इज ए प्रोफेशनल मेंबर, एंड द एजेंसी शैल पब्लिश सच डिस्क्लोजर ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक है। An insolvency professional shall disclose its relationship, if any, with the corporate debtor। किस किस के साथ रिलेशनशिप डिस्क्लोज करनी है? सीडी के साथ, अदर प्रोफेशनल्स एंगेज्ड बाय इट। मान लीजिए आपने किसी वैल्यूअर को एंगेज किया और वैल्यूअर आपका ब्रदर है, ठीक है, हम्म फाइनेंशियल क्रेडिटर्स तो आप एंगेज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो आपका रिलेटिव हो जाएगा। लेकिन आपका जो रिलेशनशिप किसके साथ? कॉर्पोरेट डेटर के साथ। और काइंड ऑफ रिलेशनशिप नीचे दे रखा है, उस तरह से समझ में आएगा। विद द कॉर्पोरेट डेटर, अदर प्रोफेशनल्स एंगेज्ड बाय इट, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर्स एंड प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। इन सबके साथ रिलेशनशिप देना है। किसको देना है ये डिस्क्लोजर होना आईपीए को। ठीक है। ऑफ विच इज ए मेंबर विद इन टाइम स्पेसिफाइड हेयर अंडर।
ये इस टाइम के अंदर देना है। जैसे मान लीजिए आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप क्या कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है आपके साथ, तो आपको देना है कितना, विद इन 3 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अब आप कहोगे कि अगर आप कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टी हो तो क्या आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है? द आंसर इज नो, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहां पर ये कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहा है? ये रिलेशनशिप कह रहा है आपकी, इफ यू हैव बीन एन एम्प्लॉई ऑफ और हैज बीन इन द पैनल ऑफ एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एक बैंकर है उस सीडी का, उस बैंकर के आप पैनल में हो तो भी आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। या अगर आप एम्प्लॉय हो किसके, सीडी के, मान लो आप 10 साल पहले एम्प्लॉय थे तो भी आपको देना है, ठीक है। बार नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक कंपनी में 10 साल पहले नौकरी करते थे, ठीक है, अब आपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम पास कर लिया, अब आप उस कंपनी के आईपी अपॉइंट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार है प्रीवियस 3 इयर्स में, है ना, प्रीवियस 3 इयर्स के बियॉन्ड तो कोई बार नहीं है। लेकिन वो कह रहा है वेदर ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ और हैज बीन इन द पैनल ऑफ, लेकिन आप कभी भी उसके एम्प्लॉय रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करना है ये, ठीक है। और कब करना है? रिलेशनशिप ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद कॉर्पोरेट डेटा, और 3 दिन के अंदर, ठीक है। अब आईपी अगर रिलेटेड है किसके साथ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ, अकाउंटेंट के साथ, लीगल प्रोफेशनल्स, अदर प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड बाय हिम, देन द डिस्क्लोजर हैज टू बी मेड विद इन 3 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स, ठीक है। और काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्या है? ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो 524 में है। देखो 524 डिफरेंट है, आप ये समझिए, 524 इज डिफरेंट, 524 524 है, वहां से रिलेशनशिप नहीं देखना। रिलेशनशिप फॉर दिस पर्पज इज डिफरेंट, ये पॉइंट हमें मेन ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम्म, आईपी का रिलेशनशिप है विद एफसी तो विद इन 3 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अगर उसका इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर से कोई रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप क्या है ये, an insolvency professional shall ensure disclosure of the relationship, if any, of the other professionals engaged by it, ठीक है, with itself, corporate debtor, financial creditor, the interim finance provider, ठीक है। रिलेशनशिप किस टाइप का होना है? ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप पहला, ये देखिए, फॉर द पर्पजेज ऑफ क्लॉज 8B एंड क्लॉज C, यहां रिलेशनशिप का मतलब डिफरेंट है, ये 524 से मतलब नहीं है। So any one or more of the following four kinds of relationships at any time or during the 3 years preceding the appointment of other professionals, ठीक है। Where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, has derived 5% or more of his gross revenue in a year from the professional services to the related party, ठीक है। अगर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है या कोई अदर प्रोफेशनल है, उसको 5% मिला है, कहां से, रिलेटेड पार्टी से, तो आपको ये रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना है। सेकेंड, वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर प्रोफेशनल, एज द केस में बी, इज ए शेयर होल्डर, मतलब ये देखो ऐसा है। अब इसको हमारे को किसके साथ मिलाकर के पढ़ना है? हमें मिलाकर के पढ़ना है रेगुलेशन नंबर 3 है शायद, है ना, रेगुलेशन नंबर 3 भी निकाल लेते हैं हम, CIRP रेगुलेशंस का 3 है मेरे ख्याल से, अगर मुझे करेक्टली याद है तो। Regulation number 3. CIRP Eligibility, रेगुलेशंस, eligibility for resolution है ना। professionals. तो अब हाँ. ये कहता है एलिजिबिलिटी इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। हम्म. मतलब ये कि अगर आप रिलेटेड पार्टी हो कॉर्पोरेट डेटर की तो आप आरपी अपॉइंट नहीं हो सकते, हम्म. ठीक है। लेकिन यहां क्या कहता है? यहां ये कहता है कि रिलेटेड पार्टी तो नहीं हो आप, हम्म. ठीक है, लेकिन जो कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी है उससे आपको कुछ इनकम मिल रही है, समझ गए? हम्म. बराबर कितनी मिल सही रही है. है?
5% और मोर ऑफ हिज और इट्स ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है। रिलेटेड पार्टी कहां से ले लोगे आप? रिलेटेड पार्टी वहां से ले लोगे 524 से। हम्म मतलब पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि XYZ एक कंपनी है। हम्म ठीक है। हम्म और आप XYZ की रिलेटेड पार्टी हो, तो आप RP अपॉइंट नहीं हो सकते। मान लीजिए आप XYZ के डायरेक्टर हो, आप उसके KMP हो, आपके पास 2% और मोर शेयर कैपिटल है ना, वो जो हम्म 524 में दिया गया है, तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते। अब यहां कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है? यहां ये कह रहा है रिलेटेड पार्टी की बात नहीं है, उसकी जो रिलेटेड पार्टी है CD की, उससे आपको इतना मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5% और मोर। क्यों रूप किरण जी, एम आई करेक्ट? हाँ सर, यस सर। है ना? यस तो यस। यहां जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का रिलेशनशिप है। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ना, थोड़ा सा रिमोट कनेक्शन है। तो यहां पर क्या है कि देयर इज नो बार ऑन अपॉइंटमेंट, बट यू हैव टू डिस्क्लोज। ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर प्रोफेशनल इन द केस में भी हैज डिराइव्ड 5% और मोर ऑफ हिज और इट्स ग्रॉस रेवेन्यू इन ईयर फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज टू द रिलेटेड पार्टी। ठीक है। Second, where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, is a shareholder, director, key managerial personnel और पार्टनर ऑफ द रिलेटेड पार्टी। जो CD की रिलेटेड पार्टी है, आप क्या हो? उस कंपनी के, भाई CD की जो रिलेटेड पार्टी वो कंपनी भी हो सकती है ना, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब मान लीजिए XYZ एक कंपनी है। ठीक है। XYZ की एक होल्डिंग कंपनी है, LMN। अब आप LMN में शेयर होल्डर हो, ठीक है, तो भी आपको डिस्क्लोज करना है, ये मतलब है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस वेयर द सर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर पर्सनल केस में भी आप शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, KMP हो या पार्टनर हो। किसके? उसकी, उस कंपनी के रिलेटेड पार्टी के। कौन सी रिलेटेड पार्टी? जिसके आप RP हो या अदर पर्सन। ठीक है। आप XYZ के वैल्यूअर अपॉइंट हो गए। XYZ की एक होल्डिंग कंपनी है, LMN लिमिटेड। MLN लिमिटेड में आप शेयर होल्डर हो, तो आपको बताना है। ठीक है, ये मतलब। थर्ड, वेर ए रिलेटिव, स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, सिबलिंग ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द IP और द अदर प्रोफेशनल एज द केस में बी हैज ए रिलेशनशिप ऑफ काइंड A और B विद द रिलेटेड पार्टी। हम्म मतलब आपका नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ। मतलब ये कि XYZ एक कंपनी है, XYZ की रिलेटेड पार्टी है LMN लिमिटेड। LMN लिमिटेड में, LMN लिमिटेड को आपकी वाइफ सर्विसेज दे रही है। ठीक है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और उसको 5% जो है उस कंपनी से मिल रहा है, उस रिलेटेड पार्टी से, तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। क्लियर हम्म है ना? यस सर। स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, सिबलिंग ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इनका रिलेशनशिप है, या वो शेयर होल्डर है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि एक एग्जाम्पल्स आप बना दें इसके, क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। एग्जाम में तो ऐसे नहीं पूछेगा वो तो ये पूछेगा सीधा कि भाई ऐसा है कि यू आर एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, योर स्पाउस इज रनिंग ए लीगल फर्म। ठीक है। और वो जो लीगल फर्म इज गेटिंग 5%, और लीगल फर्म की टर्नओवर जो है से 20 करोड़ है। ठीक है। और उसको 2 करोड़ मिले हैं किससे? LMN लिमिटेड से। और LMN लिमिटेड क्या है? LMN लिमिटेड जो है ये सब होल्डिंग कंपनी है। सब्सिडी। हाँ, किसकी? सब्सिडी ऑफ XYZ XYZ। लिमिटेड की। हाँ। तो इस तरह से, तो फिर आपको क्या करना है, ये तो वो फिर आपको यहाँ रिलेशनशिप में आना है। ठीक है। या ब्रदर है आपका, अरे ब्रदर भी कवर्ड हो जाएगा इसमें, सिबलिंग आ गए ना, हम्म साला भी आ गया आपका, सिबलिंग ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस। ठीक है। हाँ यस सर। तो अब इसके लिए सबसे बढ़िया पता क्या है, एक चार्ट बनाओ, इन ये रिलेशनशिप्स को एनविसेज करते हुए एक स्टोरी बना लो कि भाई ये वाली सिचुएशन इसमें आएगी या नहीं आएगी। ठीक है।
अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक कंपनी में आईपी हो और आपके मामा शेयर होल्डर हैं, तो क्या होगा? आपको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना? भाई, आपके मामा शेयर होल्डर हो सकते हैं, आपको पता है। पहली बात तो आपको हम्म, पता है नहीं पता, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पता है तो आपको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, ये बता दीजिए। करना है सर। कहां पर कवर होगा? या है ना, बी एंड सी में। मामा कहां पर आएगा? नो सर, नो नो नो। वेयर ए रिलेटिव, स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, सिबलिंग। देखो, स्पाउस, मामा स्पाउस में नहीं आ रहा, मामा पेरेंट्स में नहीं आ रहा, मामा पेरेंट्स ऑफ स्पाउस में नहीं आ अच्छा रहा, अच्छा। हम्म। सिबलिंग में नहीं आ रहा, चिल्ड्रन में नहीं आ रहा। कहाँ आएगा? नहीं ऐसा नहीं, नहीं करना नहीं है, पड़ेगा नहीं है सर। सर, नहीं है। नहीं है ना? हम्म। हम्म। जो लिखा है वही उतना ही होना है बस। चलिए, और नेक्स्ट है इसमें, वेयर द इंसॉल्वेंसी, मतलब ये रिलेटेड पार्टी से बियॉन्ड जा रहा है। देखो, अगर डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी है तो आप उसके अपॉइंट हो ही नहीं सकते, है ना? वो तो आपका रेगुलेशन 3 में ही बाहर आ गया। सो यू कैनॉट बी अपॉइंटेड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है? लेकिन आपको क्या है, रिलेटेड पार्टी से कुछ डीलिंग है, ये उसकी बात कर रहा है। अगर आरपी खुद ही रिलेटेड पार्टी है तब तो अलग बात है, फिर तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता। अब ये सिचुएशन यहां क्या है, आरपी रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन आरपी को रिलेटेड पार्टी से कुछ बिजनेस डीलिंग है। किसकी रिलेटेड पार्टी? सीडी की, इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर की, ये सब इस तरह से। इसको हमें जोड़ के पढ़ना है ऊपर वाले से। ये हम्म। रिलेशनशिप ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद कॉर्पोरेट डेटा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर्स, prospective resolution applicant, if relationship with any of the above comes to the notice or arises subsequently. नेक्स्ट देखिए, where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, is a partner or director of a company, firm or LLP, such an insolvency, such as an insolvency professional entity or registered valuer, the relationship of kind A, B or C of every partner or director of such company, firm or LLP with the related party. ठीक है? अब अगर आप पार्टनर हो या डायरेक्टर हो किसी कंपनी के या एलएलपी में, और आपके पार्टनर का कुछ रिलेशनशिप है, मतलब ये कि आप एक एलएलपी में पार्टनर हो, ठीक है? और आपका जो पार्टनर है उसको, जो सीडी की रिलेटेड पार्टी है, जो इंटरिम फाइनेंसर की रिलेटेड पार्टी है, उससे क्या मिल रहा है? 5% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है? या फिर आप एक एलएलपी में पार्टनर हो, आपका जो पार्टनर है उसकी वाइफ को मिल रहा है 5% और मोर, ठीक है? या वो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, या केएमपी है, या पार्टनर है। क्लियर है रूपकिरण जी? यस सर। यस सर। तो बेसिकली इसमें यह है कि थोड़ा रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टेंट है, इतनी क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्लोज करना है। बेसिकली बात यह है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद में थोड़ा सा जी के स्टडीज पे देख लेते हैं।
ये इसमें इसी में डाल रखा मैंने, फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से हो जाता फिर तो। एक मिनट, ये कहाँ है? हम्म। तो रुक किरण जी, आप बनाओगे इस पे कुछ, इसका चार्ट टाइप बना लोगे आप? हाँ बनाऊंगा सर, ये रिलेशनशिप्स वाला ये बना लो, है ना? रिलेशन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप का बनाऊंगा। हाँ, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, हाँ हाँ। हाँ सर। उसमें ईआई में डालोगे तो भी बन जाएगा सर। है। ईआई में डायरेक्टली दिस, पुट इट इनटू एआई एंड राइट इट की क्रिएट ए केस क्लोज। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप डाल देना, एआई में डाल के बना देना, डाल बना के ग्रुप में डाल देना। ओके सर। हम्म। एआई भी ऐसा नहीं कि सब काम कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा नहीं अपना सर, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सही एआई है सर, सब कुछ सही। नहीं कर देगा। हाँ हाँ हाँ। सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टू मेनी असाइनमेंट्स। अभी आज की डेट में तो ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट में ये है कि यू कैन नॉट टेक मोर देन 10 असाइनमेंट्स, है ना? 10। हाँ। और उसमें से भी 3 शुड नॉट बी मोर देन कितना, 1000 करोड़, यस। है ना? ऑफ लिस्टेड कंपनी। हाँ। 10 चलो। CIRP असाइनमेंट सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या नवंबर से आ गए हो, हाँ। नवंबर से चेंज हुआ है। एंड यू कैन नॉट बी इन एम्प्लॉयमेंट, ये वेर एन प्रोफेशन में रह इंसॉल्वेंसी सकते प्रोफेशनल। सर, प्रोफेशन भी जैसे एडवोकेट है, सीए, वो तो चलेगा ना, वो तो चलेगा, आईपी हाँ के लिए। हाँ बिल्कुल, वो तो चल सकता है। और यस। जैसे आप सीए की प्रैक्टिस साथ में कर सकते हो। हाँ जी। Where an insolvency professional has conducted CIRP, he and his relatives shall not accept any employment other than an employment secured through open competitive recruitment हम्म। with or render professional services other than services under the code to a creditor having more than 10% voting power, the successful resolution applicant, the corporate debtor, or any of their related parties until a period of 1 year has lapsed from the date of his cessation from such process. मतलब ये कि आप एक कंपनी के आरपी हो, ठीक है? अब आपका ब्रदर उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, कब तक? 1 साल तक, जब आपका एक पीरियड टेन्योर खत्म हो जाए आरपी वाला। अगर ओपन कम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट से आया तो बात अलग है, बट वैसे नहीं कर सकता। या वो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता 1 साल तक, ठीक है? या किसी ऐसे क्राइटर के पास हु इज हैविंग मोर देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर। बेसिकली क्या है कि ताकि आपको ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर दे कोई, इसलिए ये रखा गया है, ठीक है? An insolvency professional shall not engage or appoint any of his relatives or related parties for or in connection with any work relating to any of his assignments. अब ऐसा नहीं कि आप एक कंपनी के सीआईआरपी में हो तो आप अपने ब्रदर को ही वहां अकाउंटेंट लगा दो, नहीं लगा सकते, ठीक है? So you cannot engage or appoint any of his relatives or related parties for or in connection with any work relating to any of his assignments. An insolvency professional shall not provide any service for or in connection with the assignment which is being undertaken by any of his relatives or related parties. आपके रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी के पास कोई असाइनमेंट है, उसमें भी आप कोई सर्विस नहीं दे सकते। और रिलेटेड पार्टी क्या है? वो 524A में, ठीक है? लेकिन इसमें आईपीई इंक्लूडेड नहीं है, ऑफ विच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज ए पार्टनर और डायरेक्टर। यू कैनॉट ऑब्टेन एनी गिफ्ट्स। अब ये देखते हैं एक बारी जरा, ये देखिए, पीएनबी जो है इट इज प्लानिंग टू गो फॉर सीआईआरपी अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड। पीएनबी ने लोन दे रखा है एबीसी लिमिटेड को, और उसके अगेंस्ट सीआईआरपी इनिशिएट करना चाहती है। अब उसके पास प्रपोजल आए हैं कुछ, ठीक है? क्या पहला प्रपोजल है? मिस्टर राम, ये पार्टनर है फर्म सीए कुमार एंड कंपनी, ठीक है, एलएलपी, अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर 2022-23, बट ऑडिट इज येट टू बी डन, ठीक है?
मतलब ये कि इसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है एज ऑडिटर, लेकिन ऑडिटर अभी होना है, ऑडिट होना है। मिस्टर राम है, एक सीए है, ठीक है, ये कुमार एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर है, ठीक है। इसकी हम्म, अपॉइंटमेंट हुई है एज ऑडिटर फॉर 22-23, लेकिन ऑडिट अभी होना है। तो क्या आप मिस्टर राम को आरपी अपॉइंट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। हाँ जी। 3 years का कैप है ना सर? हम्म। नहीं कर हाँ सकते सर? हाँ, 3 इयर्स का क्राइटेरिया है ना उसमें। यस सर। क्या कहता है, इज नॉट एन एम्प्लॉय और पार्टनर और प्रोपराइटर, तो पार्टनर हो गया ना ये, ऑफ ए यस। फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स, हाँ। है ना, इन द लास्ट यस। 3 फाइनेंशियल ईयर्स। लास्ट प्रेफरेंस, यस। दूसरा देखिए, मिस्टर श्याम है, ही इज एन एक्स एम्प्लॉय of CA Kumar and Company, appointed as auditor of ABC Limited for 22-23, but audit is yet to be done. CIRP किसकी होनी है, ABC लिमिटेड की। ये एक्स एम्प्लॉय है कुमार एंड कंपनी का, विच हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। भाई फर्म कुमार एंड कंपनी अपॉइंट हुई है, उसमें एक एम्प्लॉय था, ठीक है, लेकिन वो 2017 में छोड़ के जा चुका था। तो क्या मिस्टर श्याम जो है अब आरपी अपॉइंट हो सकता है, क्वेश्चन ये है। यस, बट ही हैज टू डिस्क्लोज इन फॉर्म। नहीं, पहले तो ये बताइए ये अपॉइंट हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एम्प्लॉय किसका देखना है, एम्प्लॉय देखना है ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में तो है नहीं है, ये तो नहीं 17 है। में छोड़ के जा चुका, हाँ, यस, अपॉइंटेड सर। है ना, ही कैन बी अपॉइंटेड। मिसिस जानकी, पार्टनर इन सीए फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी, ऑडिटर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर 21-22। ये मिसिस जानकी पार्टनर है सीए फर्म XYZ एंड कंपनी, जो कि ऑडिटर रह चुके हैं एबीसी लिमिटेड के हम्म। फॉर द ईयर 21-22। तो ये जो मिसेज जानकी है, ये पॉइंट हो सकती है नहीं हो सकती। नहीं सर, नहीं, नहीं सर। हाँ, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स वाला क्राइटेरिया आ जाएगा इसमें। हम्म। मिस्टर लक्ष्मण लेफ्ट ऑन 1-2-2010, एक्स एम्प्लॉय ऑफ BCD एंड कंपनी, ऑडिटर 2021। 21, 21, 21, 22, 23। 22, नहीं, एक्स 23। एम्प्लॉय है BCD एंड कंपनी का, जो कि ऑडिटर थे 2021 में। अब मिस्टर लक्ष्मण जो है वो आईपी है, मिस्टर लक्ष्मण क्या अपॉइंट हो सकता है आरपी, क्वेश्चन ये है। लक्ष्मण तो अपॉइंट हो ही सकता है, क्योंकि वो तो हम्म। 2010 में छोड़ के चला गया ना कंपनी को, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। मिस्टर रावण, पार्टनर ऑफ PQR LLP, ऑडिटर थे 2019-20 में। अब आरपी अपॉइंट होना है 1/4/2023 को। 1920 में कोई ऑडिटर था, पार्टनर था LLP का, जो हम्म। कि ऑडिटर थी, तो क्या वो 23 में अपॉइंट हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो यस सर। 1920, 2021, 21-22, हम्म। है ना, तो अपॉइंट हम्म। हो सकता है, 3 साल से तो पार हो गया ना। हो हम्म। सकता है सर। मिस्टर हनुमान लेफ्ट ऑन 1/5/22, एक्स एम्प्लॉय ऑफ LMO एंड एसोसिएट्स, ऑडिटर थे 2018-19 में। इज ऑल्सो अपॉइंटेड सर। हाँ, क्योंकि क्या है, ये ऑडिटर आपके 18-19 में रह चुके, 18-19 तो 3 साल पुराने हो गए ना। हाँ जी। अगर एक एम्प्लॉय है, अगर एक ऑडिटर, ऑडिटर ही नहीं है, वो 3 साल से पुराना ऑडिटर है ना, हम्म। तो मिस्टर हनुमान जो है वो अपॉइंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है।
हमें क्या देखना है? हमें देखना ये है कि जैसे जो श्याम है, जैसे श्याम है ना ये वाला, वेदर ही श्याम लेफ्ट कुमार एंड कंपनी लास्ट 3 years और अर्लियर, है ना? तो हैज ही लेफ्ट इन 2017, सेकंड वाले केस में ये इसका हम्म लॉजिक दिया हुआ है। तो हैज ही लेफ्ट इन 2017 एंड विच इज मोर देन 3 years, देयरफॉर कुमार एंड कंपनी इज एलिजिबल। ये वाला, ये केस स्टडी दी हुई है आपकी आईबीबीआई वेबसाइट पर भी, हम्म 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 है ना? तो हम्म इसमें क्या है कि मिस्टर एस, यस मिस्टर एस एन एडवोकेट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है? ये करवाए सर आप, गोपिका बोल के ऐसा कुछ नाम था। हाँ वही है, संजय रुया केस है। हाँ, वही 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 केस, हाँ, है ना? तो ही इज एन एडवोकेट इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक फाइलिंग ऑफ पिटिशंस बिफोर ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। और मिसेस बी जो है, वाइफ ऑफ मिस्टर एस, इज ए रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है? अब मिस्टर एस जो एडवोकेट है, इसने क्या किया? ही फाइल्ड मेनी एप्लीकेशंस रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बिफोर एनसीएलटी। ठीक है? एंड हिज वाइफ मिसेस बी, being an insolvency professional in her own professional capacity, acts as an insolvency professional in all the cases her husband takes up। मतलब हस्बैंड इंडिपेंडेंट इंसॉल्वेंसी नहीं है। पिटीशन फाइल कर रहा है और वाइफ जो है आईपी बन रही है। सो देर इज नो इंडिपेंडेंस। हाँ बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंस के ऊपर ही है बेसिकली। ये बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं कि जिसमें ये क्या करता है कि इफ यू रिजाइन एज आरपी, देखो ऐसा है, इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार प्रोफेशनल एथिक्स पे कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है? आपकी नी सर्जरी ड्यू है। ठीक है? हो सकता है। अब नी सर्जरी के लिए आपको 1 महीने यू हैव टू बी आउट ऑफ जॉब, आउट ऑफ ऑफिस। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप सीओसी से पूछोगे, आप सीडी से पूछोगे, आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करोगे, क्या करोगे आप? आपके डॉक्टर ने बोला भाई देखो अभी मैं इंडिया में हूँ, तो फिर मुझे जाना है 1 महीने बाद, अभी सर्जरी करवा लो। आप कहते हो मेरे को तो ये आरपी वाला असाइनमेंट मिला हुआ, तो क्या करोगे आप? बोर्ड को बताना है सर। बोर्ड को नहीं बताना। देखिए ऐसा है कि आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? ए। आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। आप ये बात को समझो कि जो भी, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट में होते हो, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चीज आपको छुट्टी लेनी किससे लोगे? आप अपने एम्प्लॉयर से लोगे। आपका एम्प्लॉयर कौन है यहाँ पर? आपका यू हैव बीन अपॉइंटेड बाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना? सीओसी ने तो प्रपोज किया आपका नाम, या सीडी ने या क्लाइंट ने प्रपोज किया, एप्लीकेंट ने प्रपोज किया, लेकिन अल्टीमेटली यू आर अपॉइंटेड बाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये देखेगा कि भाई आपका एब्सेंस छोटा है या बड़ा है। अगर थोड़े दिन के लिए एब्सेंस है तो ठीक है, तो काम चल सकता है। अगर ज्यादा दिन के लिए एब्सेंस है तो दूसरे को अपॉइंट कर देंगे। अब एक इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो वैल्यूअर अपॉइंट होने हैं, वैल्यूअर अपॉइंट करने की ड्यूटी किसकी है? आरपी की ड्यूटी है या सीओसी की ड्यूटी है? आरपी की है सर। आरपी की ड्यूटी है बिल्कुल। सीओसी का क्या काम है? सीओसी का काम तो सिर्फ रेटिफिकेशन ऑफ फीस है ना?
अच्छा, एक केस ऐसा है कि सपोज यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन आरपी, देयर इज ए आर्बिट्रेशन केस गोइंग ऑन, ठीक है। आर्बिट्रेशन केस आपका चल रहा है, और आर्बिट्रेशन केस में आपके फेवर में जजमेंट आने वाली है ना, फाइनल डिसीजन होने वाला है। तो अब आप, जो आर्बिट्रेटर बुला रहा है, आर्बिट्रेटर का नोटिस आया, आर्बिट्रेटर को कंपनी के नाम में नोटिस आया, आपको कुछ आर्बिट्रेशन केस के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टर्स को साथ में लेके जाओगे, आप खुद रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? भाई पुराना केस चल रहा है आर्बिट्रेशन का, डायरेक्टर बोलता है मेरे को साथ ले चलो, मुझे पूरी नॉलेज है, आप क्या कहोगे? सर इसको मोराटोरियम नहीं लगता सर, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ऐसा है ना कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो आपके फेवर की है, समझ रहे हो आप? हम्म। अब कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है, मान लो रिफंड आना है कोई, आर्बिट्रेशन छोड़ दो, रिफंड आना है कोई, सही है सर, तो जाना पड़ेगा सर। है? जाना पड़ेगा सर, पक्का जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टर बोलता है भाई मेरे को ले चलो साथ में, मुझे पूरे केस की हिस्ट्री मालूम है, तो आप उसको ले जाओगे, नहीं ले जाओगे, आप खुद जाओगे, क्या करोगे? आ, The सर board वो, of directors is suspended है। हम्म। नहीं 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 नहीं, हाँ बट सर, इफ इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा मतलब कंपनी, देन वी कैन डेफिनेटली प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ सीओसी, मतलब अप्रूवल ऑफ सीओसी। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन सीओसी का है ही नहीं। मतलब आपको रिफंड मिलना है किसी डिपार्टमेंट से, ले जाएंगे सर, या ले जीएसटी जाएंगे। डिपार्टमेंट है मान लो, ठीक है, हम्म। हाँ हो सकता है ना, जीएसटी हाँ। डिपार्टमेंट से रिफंड मिलना है, वहां से लेटर आया है कि भाई हम्म, एक बार ही आओ मिल लो। अब आप तो नए नए अपॉइंट हुए, आपको आइडिया नहीं है, डायरेक्टर बोलता मुझे पूरे केस का पता, मुझे साथ में ले चलो, आप क्या कहोगे? ले जाएंगे सर, आप हैं? ले जाएंगे। नहीं जाओगे मतलब आप नहीं जाओगे, कौन नहीं जाएगा? नहीं यस सर, ले जाएंगे, डायरेक्टर विल। नहीं, डायरेक्टर देखो, डायरेक्टर की पावर हो जाती है सस्पेंड, डायरेक्टर की कोई पावर नहीं है, आप डायरेक्टर को साथ में नहीं ले जाओगे, आपको ही हैंडल करना है उस चीज को। आप चाहे कोई प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हो उसके लिए, समझ रहे हो? हम्म डायरेक्टर को आपने पिक्चर में ले लिया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तो हम्म। एम्प्लॉय को ले जाना सकते हैं क्या? सीईओ, एम्प्लॉय को, यस यू कैन टेक एन एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय को ले जा सकते हो, सीडी का अगर कोई एम्प्लॉय है तो ले जा सकते हो, लेकिन बोर्ड की पावर तो सस्पेंड हो गई ना। हाँ बट बट डायरेक्टर सर है। बट सर और इन अगर स्पेशल कोई केसेस। इंफॉर्मेशन उससे लेनी है तो ले सकते हो, पर सर बोर्ड से इंफॉर्मेशन तो आप ले सकते हो, उसमें कोई नहीं हार्म सर, नहीं, ऐसा नहीं सर। आरपी देयर आर लेकिन सम वो पावर्स। रिप्रेजेंट नहीं कर सकता आपके साथ, है जी। सर देयर आर सम पावर्स गिवन टू आरपी, with the help of that power we can approach to COC कि ऐसा मैटर है, and then we can proceed further for director going to department for refund if भैया it's a देखो, substantial सीओसी की amount। ज्यादा ऐसा है, सीओसी को हर बात के लिए नहीं पूछना है। वो बात भी सही जैसे है मान सर। लो आपको वैल्यूअर अपॉइंट करना है, सीओसी से थोड़ी पूछना है। वो बात ये इट्स आपकी यस यस ड्यूटीज सर। राइट्स दे रखे हैं, आपको सीओसी किस मैटर में पूछना है, सेक्शन 28 में लिखा हुआ है। यस यस, देयर आर सम सिग्निफिकेंट मैटर। सेक्शन 28 में है कि किस किस चीज के लिए आपको सीओसी को पूछना है, बाकी यस तो सर यस। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 28 तो आपको सिर्फ रेटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के लिए पूछना है, बस, और हाँ किसी चीज के लिए नहीं। हाँ, सही है सर, डेफिनेटली सर। हम्म। इट्स टोटली एग्जॉस्टिव। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर का एक्स एम्प्लॉय है, तो क्या वो आरपी अपॉइंट हो सकता है? हाँ वो ले सकता है सर, हाँ, वो ले सकता उसको ले सकता है, है। एसबीआई वाला केस है इसमें। हम्म। एसबीआई का एक एक्स एम्प्लॉय था, और इसमें एसबीआई ने एम्प्लॉय क्या रिजाइन किया, करके आईपी एक बनता है पिटीशन सर। फाइल किया, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाँ जी। हालांकि बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई चेंज कर दिया आपने वो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि भाई एक्स एम्प्लॉय आपका आरपी नहीं हो सकता, हो सकता है।
वैसे इसमें ज्यादातर आजकल दो तीन सवाल पूछ रहा है केस स्टडीज में। एक तो ये पूछ रहा है कि ये वाला, कि भाई उसने एफसी को ओसी चेंज करा दिया। और दूसरा वो पूछता है वो वाइफ वाला, वाइफ और हस्बैंड वाला, संजय वाला। आप बहुत ज्यादा फीस नहीं चार्ज कर सकते, है ना। अभी तो अभी भी क्या है कि मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब्ड है। अच्छा, एक इसमें भी हाँ सवाल बता दो आप। हाँ। अगर मान लो कोई मिनिमम से भी कम फीस चार्ज कर लेगा तो क्या होगा? अलाउड है, नहीं है? हम्म। मिनिमम से कम। सर आइडियली इट विल नॉट अलाउड। भाई वो बोलेगा मैं खाली हूं, मेरे को कम दे देना यार। ये जो सीआईआरपी रेगुलेशन में फीस दे रखी है ना, हाँ। तो सीआईआरपी रेगुलेशन में फीस दे रखी है आपको, हम्म। अभी हमने पढ़ा ना। हाँ। तो क्वेश्चन ये है, क्या इससे कम फीस ले सकते हो आप? शेड्यूल 2 में दे रखा ना, मिनिमम फिक्स्ड फीस एज पर टेबल 1 बिलो shall be paid to the IRP or the RP as the case may be for the period mentioned in clause 2। ये कब है? टिल द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू लिक्विडेट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, ऑर्डर फॉर क्लोजर ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस विच एवर इज अर्लियर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई मिनिमम से भी आप कम चार्ज कर सकते हो क्या? हम्म। क्या रूप किरण जी, क्या बोलते हो? नहीं सर, ज्यादा चार्ज कर सकते हैं लेकिन कम नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो जो है फिर आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कवर हो जाएगा, है ना, अंडर कटिंग में आ जाएगा। मिनिमम फिक्स्ड फीस है ये। ये अगर आपको ऐसा ही यहाँ प्रॉब्लम आए ना, तो ये जो वाइट वाइट नजर आ रहे हैं, इस पे व्यू पे जाके ना आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मनीष जी, नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली मेरी ना क्लास चल रही है, सुबह बात करते हैं आराम से, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये व्यू में ब्लैक एंड व्हाइट पे जाएंगे तो ये नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक उसमें आ जाता है वो, जैसे मान लीजिए ही वॉज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, ये भी है ना। ये देखिए, ये भी केस स्टडी है। 6 मंथ्स। हाँ, 6 मंथ 6 मंथ। से ज्यादा रहा तो इनएलिजिबल हो जाएगा सर। हाँ, 6 मंथ से ज्यादा रहे तो, और फिर ये कि वो अगर वो 5 साल हो गए उसको छूटे हुए, हम्म। तो भी एलिजिबल यस सर। है ना। लेकिन अगर मॉरल टर्पिट्यूड है तो उसमें 6 मंथ्स का भी नहीं है। लेकिन उसका बहुत वाइड डेफिनेशन है सर, उसको एनीथिंग कैन बी मॉरल टर्पिट्यूड। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो मॉरल, देखो अगर आपने ब्राइब लेते हुए पकड़े गए, मॉरल टर्पिट्यूड है। आपने घी में मिक्सिंग कर रहे हो, मॉरल टर्पिट्यूड है। हम्म। आप ट्रेवलिंग विदाउट टिकट पकड़े गए, मॉरल टर्पिट्यूड है। तो
बेसिकली तो इस टाइप के सवाल पूछेगा वो इसमें। एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पर देख लेते हैं, है ना, Yes, सीआईआरपी का। sir. यहाँ ये इस पे भी सवाल पूछ लेता है। अप और टू फिर 5 crores। अभी हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और एक फिर फीस ऑफ एआर और फैसिलिटेटर। ये दो चीजें आज डिस्कस कवर कर लेते हैं, है ना। अप टू तो 5 crores। हाँ, सबसे पहले हम ये बात करते हैं ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की। तो फीस तो ये मिलना है मिनिमम, ठीक है। इस फीस के अलावा क्या क्या मिलना है उसको, ये बात करता है। अच्छा, ये तो आईआरपी वाले हैं ना। ये सीआईआरपी रेगुलेशंस पे जाना है अपने को, सी 56 to 160। टाइमलाइन को लिंक्ड है सर वो। हम्म। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर थे हम लोग। तो एक तो ये फीस मिल गई। अच्छा, ये वहाँ फिर दोबारा वहीं पहुंच जाता है कि कोई बात, दोबारा चलते हैं। ये यहाँ पर थे हम, ठीक है जी। मिनिमम फिक्स फीस वाला हो गया। अब है पीरियड कौन सा है। अच्छा, सपोज ऐसा है, आपकी फीस फिक्स हो गई, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सीओसी ने एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया। सीओसी ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया और आपने यू हैव सबमिटेड इट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का फैसला आना अभी बाकी है। तो उस पीरियड में आपको क्या फीस मिलेगी, क्या वेदर इट विल बी बेस्ड ऑन द क्लेम्स एडमिटेड अमाउंट और व्हाट। आई होप यू हैव गॉट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज that COC has approved a resolution plan and it has been submitted to adjudicating authority for approval, right? So in the meantime, whether you will be getting any fees, first question, yes or no, फीस मिलेगा इस पीरियड में या नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर जो फीस मिलेगा, क्या वो क्लेम्स एडमिटेड के बेसिस पर मिलेगा या कुछ और अरेंजमेंट होगा। दीज आर द टू क्वेश्चंस। क्यों नरेंद्र जी। यहाँ पॉइंट नंबर 2 में है ना सर। हाँ, पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है। पॉइंट नंबर टू बोलता है ये जो फीस दी है ना हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम्स एडमिटेड, ये कब कब की है, जब तक आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, जो मैंने सिचुएशन अभी बताई। मैंने हम्म। क्या सिचुएशन बताई कि यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। सो यस सर। आफ्टर दैट यू विल नॉट बी गेटिंग फीस ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पर नहीं मिलेगा। तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट, सीओसी के बेसिस पर, ठीक है। सीओसी आपके साथ अलग से एग्रीमेंट कर लेगी, आप कुछ फीस बताओगे, क्योंकि योर लाइबिलिटी इज सब्सटेंशियली रिड्यूस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। उसके बाद में भाई आपने, अच्छा उसके बाद में आप क्या क्या काम करते हो ये भी बता दो। कि एक बार आपने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल के लिए दे दिया, उसके बाद में आपका रोल क्या रहता है, कुछ रोल भी रहता होगा ना आपका। हाँ, वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी रहता है वेरी सर, गुड, वेरी उसमें गुड, मेंबर रहते वेरी हैं। गुड। ये आपको Oh, oh, रेगुलेशन 39 में मिलेगा। वेरी करेक्ट, oh, 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 oh. 39 मिलेगा। 39 में क्या बोलता है, ये
39D, 39D तो खैर फीस ऑफ लिक्विडेटर है। लेकिन इसमें यह है कि in the meantime, you can explore this possibility where a recommendation has been made under sub-regulation 1. The RP and the committee shall keep exploring the possibility of compromise or arrangement during the period the application to liquidate the corporate debtor is pending before the adjudicating authority. भाई आपने दो एप्लीकेशन दी होगी, या तो रेजोल्यूशन के लिए या लिक्विडेशन के लिए। दोनों ही सिचुएशन में जो जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी चीज आप एक्सप्लोर करते रहोगे। ठीक है। चलिए, नाउ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फीस। अब परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कैसा है? ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव आपका है, ये पीरियड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अगर आपने CIRP 240 डेज में कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव? 0.75%। अच्छा, 0.75% किसका? रियलाइजेबल वैल्यू का। और ये रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? इसका कोई सेपरेट मीनिंग है क्या? Amount amount payable to मीन्स creditor in our creditors resolution plan approved under in the Section 30. resolution plan approved under हाँ, section तो 31। इसका स्पेशल मीनिंग है। ये रियलाइजेबल वैल्यू, ये वो वैल्यू नहीं है जो अप्रूव्ड वैल्यूअर दे रहा है। सो दिस इज द रियलाइजेबल वैल्यू विच इज द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स इन द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31। अच्छा, और ये कब मिलेगा? ये जो ये मिलेगा जो आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये मिलेगा कब? ये मिलेगा, पहली बात, आपका प्लान अप्रूव हो जाए। हम्म। ठीक है। भाई आपने CIRP कंप्लीट कर ली, प्लान ही अप्रूव नहीं हो तो नहीं मिलेगा। हाँ जी। In cases where resolution plan is submitted to the adjudicating authority within the time period, the performance linked incentive may be paid to the RP after approval of such resolution plan. तो पहली कंडीशन आफ्टर अप्रूवल है। ऑन कमेंसमेंट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जब क्रेडिटर्स को पेमेंट शुरू हो जाए तब मिलेगा ये। ठीक है। अच्छा, तीसरा इंसेंटिव कौन सा है? एक तो फीस हो गई, एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव हो गया फॉर टाइमली रेजोल्यूशन, और एक है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है। हम्म। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ये कब मिलेगा? वैल्यू मैक्सिमाइजेशन वाला। और कितना परसेंट मिलेगा? 1%। 1%। 1% ऑफ द वॉट? रियलाइजेबल वैल्यू इज हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। हाँ, तो आपके पास दो वैल्यू हैं, एक रियलाइजेबल वैल्यू है और एक है लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है। डिफरेंस अमाउंट। हाँ, उसका जो डिफरेंस है उसका हाँ। आपको 1% मिलना है। Yes। ठीक है। अच्छा, इसका भी कुछ आपको पैसे जमा करवाने हैं क्या? जैसे मान लो आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिल गया, क्या ये जो मिला इसका भी कुछ परसेंटेज बोर्ड को जमा कराना है क्या, या सिर्फ फीस का जमा कराना है? फीस बोल के नहीं बोले सर, टर्नओवर बोल के बोले ना, तो शायद देना पड़ता है। हाँ, वन बिल्कुल परसेंट ऑफ द टर्नओवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। सो यू हैव टू गिव 1% ऑफ दिस ऑल्सो। ठीक है, यस। टू द बोर्ड। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब हम ले लेते हैं ये CIRP में ना। अब आप ये बताइए कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन AR, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो फॉर एवरी COC मीटिंग हाउ मेनी मीटिंग्स यू कैन कंडक्ट? Minimum 4, sir. नहीं, एक COC मीटिंग के लिए, एक COC मीटिंग पे आप कितनी कर सकते हो? 4 कर सकते हो कि 2 कर सकते हो? रेगुलेशन 14 नहीं होगा भाई। Mm. 16 है। तो कितनी मीटिंग कर सकते हो आप?
ये पॉइंट नंबर सी Two में लिखा meetings. है। Two हाँ meetings with creators in a class and हाँ। one meeting with committee. तो ये मीटिंग आप कर सकते हो। और अगर आप मान लो दो से ज्यादा करो तो क्या होगा? COC अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ। फीस फॉर एनी एडिशनल मीटिंग बियॉन्ड टू मीटिंग्स corresponding to a meeting of the COC shall be part of insolvency resolution process cost subject to approval of COC। तो COC से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। और आपको पर मीटिंग फीस कितनी मिलनी है? यू टेबल हैव बीन दिया है ना अपॉइंटेड सर। एज एन एआर हम्म, और नंबर ऑफ क्रेडिटर्स उसमें 1000 है, तो कितनी फीस मिल जाएगी आपको? 40,000। 15 हाँ जी। 40,000। 15,000 sir. 1000 है एग्जैक्ट। So 12,000 sir. 12,000 AR को, फी टू AR। हाँ। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इसमें शामिल है या अलग है? अलग Separate. से है सर। अलग से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटर? ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एंड AR के बीच में If हाँ लोग रहते हैं। more than 1,000 creditors sir. 1,000 लोग से, और 20% ऑफ द फी मिलता है, और 5 फैसिलिटेटर्स लगा सकते वेरी गुड, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत सही है। हम्म ये हाँ सर 16C अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर। ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए जरा, नरेंद्र जी पढ़िए जरा अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर where 16C। where the number of creditor in a class exceeds 1,000 the तो सबसे committee पहली may कंडीशन क्या है? कि हैं। 1000 से 1,000। exceeds ज्यादा क्रेडिटर होने चाहिए। yes sir. है ना? 1000 हाँ तक है तो नहीं मिलेगा। हम्म the ठीक committee है। may direct the interim resolution professional or RP resolution professional as the case may be to appoint an IP other than the IRP, RP, and authorized representative or any other person as facilitator इसका मतलब क्या for है? कि फैसिलिटेटर भी आईपी होना चाहिए, यस। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना चाहिए। ओ हो सही है सर है ना? हाँ has facilitator for a subclass within the creditor in class subject to the following conditions हम्म उसमें 3 कंडीशन दी हुई है सर द अपॉइंटमेंट हम्म ऑफ facilitator shall be considered only if after the first meeting of committee a subclass comprising of at least 1,000 creditor out of the total number of 1000 creditor नहीं, in a 100। class 100 क्रेडिटर्स। sorry sir sorry at least 100 creditors out of total number of creditors in the class request for inclusion of agenda of such appointment along with the name of the proposed facilitator तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला कंडीशन में क्या देखना है? कि जो नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन ए क्लास है दैट एक्सीड 1000, तभी अब फैसिलिटेटर अपॉइंट हो सकता है। हम्म पहली कंडीशन तो ये है। हाँ ठीक है। हाँ और सेकंड कंडीशन क्या है? कि फैसिलिटेटर कब अपॉइंट, और फैसिलिटेटर जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना चाहिए, ये भी जरूरी हम्म है। हम्म और ये कंडीशंस क्या है? फर्स्ट मीटिंग हो गई, फर्स्ट मीटिंग में जो सब क्लास है हम्म उसमें कितने होने चाहिए? मिनिमम 100 100। क्रेडिटर्स। 100। वो रिक्वेस्ट करें कि भैया एक फैसिलिटेटर अपॉइंट करो। ठीक है। और टोटल नंबर कैन नॉट एक्सीड 5 एंड फीस shall be 20% of the fees specified for AR, and such fee shall be part of insolvency resolution process cost। यस। और इसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा? सपोज यू वांट टू रिप्लेस अ फैसिलिटेटर तो क्या होगा? recommendation of a majority of the member of subclass हाँ। तो कमिटी में रिप्लेस द फैसिलिटेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सब क्लास। ये मेजोरिटी क्या है? स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है? majority means majority sir in यस Indian sir राइट। more तो than मेजोरिटी 50 मीन्स 51%। मोर देन 50%। हाँ जी। yes ठीक है। और हाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा? ही विल एक्ट एज अ ब्रिज। है ना? ही विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द सब क्लास। ओके सर सही है अब सर एक चीज और देख लेते हैं लास्ट, यस कस्टडियन सर कंट्रोल के ऊपर। कस्टडी एंड कंट्रोल कस्टडियन कंट्रोल मेरे ख्याल रेगुलेशन क्या है, 4A है, 2A क्या है, ऐसा कुछ है। कस्टडी एंड कंट्रोल एक्सेस टू बुक्स।
ये 3A, assistance and cooperation by personnel of the corporate debtor. ये पढ़िए जरा, 3A1, एक the एक वन पढ़िए इसका, ये वन okay से sir. पढ़ लीजिए, द पर्सनल Mm-hmm. ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। The personnel of the corporate, its promotes or any other person associated with the management of the corporate debtors shall provide to the IRP or RP as the case may be a list of assets and the records file handling over the custody or control, and the IRP or the RP may, after taking such custody and control, it deemed necessary identify persons in whose possession these assets and records will be held. देखो ऐसा है, इसमें दो तीन सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि सीडी प्रेजेंट है, Yes ठीक sir. है। कई हाँ, सिचुएशन तो ऐसी होती है सीडी प्रेजेंट ही नहीं होता, सीडी आउट ऑफ मालिया. कंट्री भाग गया या जेल में है। ये पहली सिचुएशन ऐसी है जहां सीडी प्रेजेंट है या प्रोमोटर्स प्रेजेंट है। तो हम्म. वो क्या करेंगे, जब वो कस्टडी इन कंट्रोल देंगे तो लिस्ट देंगे एसेट्स और रिकॉर्ड्स का। हम्म. अब वो एसेट्स रिकॉर्ड अपने घर तो ले नहीं जाएगा आरपी। मान लो उसने सही. कंप्यूटर बता दिया भाई इतने कंप्यूटर हैं, अब वो कंप्यूटर का अपने घर ले जाएगा नहीं। वो क्या करेगा, ही विल आइडेंटिफाई पर्सन्स इन हुज पोजीशन दीज एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी हेल्ड। ठीक है, Yes. चलिए नेक्स्ट। अगर Where मान लो any. कोई एसेट हाँ. या रिकॉर्ड हैंड ओवर नहीं किया गया तो क्या होगा, ये टू बताता है। यस, हम्म. पढ़िए Where पढ़िए, टू any. नंबर। Yeah, 3 numbers, sir. 3 number. Where any नहीं, टू assets पढ़ or लो पहले तो, टू ही कहाँ पढ़ा, अभी तो वन ही पढ़ा। uh, where any assets or record has not been handed over or the list has हम्म, not been provided under subsection 2, where the IRP or RP has the case may be, shall himself prepare a list and records while taking अब देखो custody ये and सेकंड सिचुएशन कौन सी है, जहां सीडी प्रेजेंट ही नहीं है, जहां okay sir. प्रोमोटर प्रेजेंट ही नहीं है। अब ये कस्टडी इन हाँ. कंट्रोल लेने गया, ये खुद हाँ. लिस्ट बनाएगा फिर। हम्म. अगर प्रोमोटर प्रेजेंट है, सीडी प्रेजेंट है, तो वो बना के दे देगा। अगर वो Yes sir. प्रेजेंट नहीं है तो आरपी बनाएगा खुद, हाँ. आईआरपी बनाएगा। हाँ. 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 Okay sir. ठीक है, अब हाँ. थर्ड पढ़िए। Each list of assets and records under sub-regulation 2 and 3 shall be signed by the party present and by at least two individuals who have witnessed the act. पंचकास्ट बोलते हैं सर हमारे यहाँ. हाँ, तो यहाँ Witness पर the क्या है, act of ये taking इसको control. जब कस्टडी इन कंट्रोल लेगा तो हाँ. कम से कम दो विटनेस होने चाहिए, इंडिविजुअल्स जो कि हाँ. विटनेस होंगे। सर ओके ये सर. विटनेस इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए या कैसा, हाँ कौन होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, इंडिपेंडेंट विटनेस ही होना चाहिए, हाँ हम्म. 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 बिल्कुल हम्म. बिल्कुल। हम्म. हम्म, चलिए, फिर 5 में क्या है सर? 5 में. पहले चार तो पढ़ लो। हाँ. हाँ. द the IRP or RP has the case may be sir requisition from the personnel of CD, its promoter, or any other person associated with the management of the corporate debtor has the case may be the information relating to assets, finances, and operations of the corporate debtors referring to clause of 18.1. Such information relating to under section 36, which were required to be maintained by CD, had not it been handed over. Means password और ID वो सब होता है सर, वही वर्क करे. हम्म हम्म आईडी हम्म, पासवर्ड. ठीक है। मतलब लिस्ट जो जो नहीं मिला है उसका जो सब. एसेट्स का लिस्ट नहीं दिया उसका ये है कि भाई उसकी भी इंफॉर्मेशन दे लिस्ट. दी, जो हाँ, लिस्ट मेंटेन बना देंगे करनी थी सर. लेकिन हैंड ओवर नहीं किए, हम्म. चाहे एसेट्स हो, फाइनेंसेस हो, ऑपरेशंस हो। चलिए नेक्स्ट। The assets where the recorded in the balance sheet or any other records referred to in 18F and whole custody has not been handed over. हम्म, उसमें हैंड ओवर नहीं किया उसका भी बनाना है सर. हाँ हाँ, और an application made under section नहीं subsection पहले, 19 अच्छा हाँ ठीक है। in respect of failure to provide any assets or record has the case or record requisite under the code and the regulation shall show present of such assets or record in the notice of the requisition and absence of such assets or record in the list of assets and records taken in custody, control and custody under
सब रेगुलेशन 2 and 3। मतलब ये है कि आप 19(2) की एप्लीकेशन लगाते हो, हम्म 19(2) की एप्लीकेशन आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगाते हो कि भाई हम्म इसने हमें रिकॉर्ड नहीं दिया। तो जब हम्म 19(2) का आप एप्लीकेशन लगाओगे तो आप ये कहोगे कि ये मैंने मांगा था और उसने नहीं दिया। सही है सर। ये प्रूफ साथ में लगाना है, ये मतलब है। हम्म। ठीक है जी। यस सर। चलिए, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। हम्म। चलो, सब भक्तों का शुक्रिया आने के लिए।